Hello everyone, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 13, that is organisms and population. And in previous lecture, we discussed about the adaptations of organisms in various habitat, and then we started population. Under population topic, we discussed about population attributes. Now we are to discuss next thing, that is known as population growth. Population growth. Now what do you mean by population growth? Any organism, कोई भी population है, किसी भी organism के, किसी भी species की, it keeps on growing. Maybe it is declining, maybe it is increasing. Okay. Population is not a static factor. It is not a static thing. It is not a static parameter. It always keeps changing. And some factors are responsible for its changing. For example, number of birth, number of death, कितना immigration हो रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, कितना immigration हो रहा है, यहाँ से कोई जा रहा है. See, suppose this is a population growth, or you can say population density. इसको हम लिखेंगे, it is population density, which is represented by capital N. It is original population. ठीक है. Now in this population it is in 100. 10 births are there. These are births. Total 10 births are there in this population, and 20 deaths are there in this population. 10 का नया birth हुआ है, 20 की death हो गई है. 2 more factors are there which are known as immigration. Suppose कोई 5 इंडिविजुअल आके रहने लग गया. सपोज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं. हरियाणा में 100 पीपल रह रहे हैं, 100 इंडिविजुअल रह रहे हैं. 10 का नया बर्थ हो गया, 20 की डेथ हो गई. फिर कुछ लोग बाहर से सोचते हैं कि अरे नहीं, हरियाणा में बहुत रिसोर्सेज है, वी कैन डू अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन हरियाणा, सो लेट्स मूव टू हरियाणा. इमिग्रेशन हो गया 5 लोगों का. अब कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे हरियाणा में तो कुछ भी नहीं है, गो टू महाराष्ट्र. हम महाराष्ट्र चलते हैं, हम फॉरेन कहीं जाते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या कर जाते हैं, यहाँ से ई माइग्रेशन कर जाते हैं. ठीक है, सपोज 10 पीपल का ई माइग्रेशन हो गया. तो टोटल पॉपुलेशन साइज हमारा अब कितना हो गया, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई. वी विल कैलकुलेट बाय एडिंग बर्थ प्लस आई मींस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन. डेथ इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई माइग्रेशन इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. तो हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 माइनस 20 प्लस 10, तो 15 माइनस 30, माइनस 15 आ गया. इट मीन्स हमारी पॉपुलेशन का साइज कम हो गया, डिक्रीज हो गया. बट इट कैन बी मोर, ये ज़्यादा भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है. तो वी कैन से पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड ऑन 4 बेसिक प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज birth, which is known as natality. Now what do you mean by natality? Natality is number of birth. It is number of births. It is presented by capital B. Number of birth in a given period of time. In a given period of time. किसी population में कितना इंडिविजुअल का बर्थ होगा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, natality. Next thing is mortality, number of death of a population. Number of death of individual of a population in a given period of time is known as mortality. Third factor is immigration. Immigration means number of individual of same species. ऐसा नहीं ह्यूमन की जगह डॉग आके रहने लगे, काऊ आके रहने लगे, हम उनको भी काउंट करेंगे. नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज come from somewhere else in a particular habitat in a given period of time is known as immigration. Next is e-migration. E-migration means number of individual of same species, number of individual of same species which are gone somewhere else, from that area is known as e-migration. Got it? So these are total 4 factors. These are total 4 factors which decide that population will increase or population will decrease. You can take screenshot, then we'll do our next topic. अरे डस्टर कहाँ गया हमारा.
population growth model, or you can say population growth curve. Okay, now what we are to see कि पॉपुलेशन टाइम के साथ कैसे ग्रो कर रही है, किस तरह का ग्राफ आ रहा है, किस तरह की कर्व आ रही है. दिस थिंग वी विल स्टडी. पॉपुलेशन कैन ग्रो ज्योमेट्रिकली, कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली. किसी तरह का कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है. अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर. नो कंपटीशन इज देयर, नो प्रीडेशन इज देयर, नो एनी कंपटीशन. कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है. अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. तो हर कोई पॉपुलेशन, हर कोई स्पीशीज ये चाहेगी कि क्या हो. Sorry for the interruption. My student was there. He was asking something. Okay. So हम कहाँ थे? Population growth curve और model. Population growth curve हमने बनानी है with time. कितनी population की growth हुई है, कैसे population grow कर रही है. अगर unlimited resources है, कोई competition है, कोई rock talk नहीं है किसी organism के ऊपर, species के ऊपर, then it will increase its population. Innate potential अपना ज़्यादा वो develop करके ज़्यादा reproduction करेगी, number increase करेगी. बट अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसको कंपटीशन करना पड़ता है दूसरी स्पीशीज के साथ. तो इससे क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाती. तो वी आर टू स्टडी टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. वन इज एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ. Logistic growth. Exponential geometric growth when there are unlimited resources. When there are unlimited resources, there is no competition, no predation, not a single problem is there. But in logistic growth, it is a real growth model. It is more realistic than geometric growth. In true false statement, this question can be asked that logistic growth is more realistic than geometric growth. Is it true or false? Okay, why it is real? क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कोई कंपटीशन ना हो, किसी तरह का कोई डर ना हो स्पीशीज को. ऐसा कभी नहीं हो सकता. रियल में क्या होता है, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑलवेज कॉम्पिटिशन इज देयर बिटवीन द स्पीशीज और बिटवीन इन अ सिंगल स्पीशीज. ओके, तो हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. Let's discuss about exponential growth. Exponential growth. Now in exponential growth, what is there? See, original population हमारी n है. Now we want to calculate change in population with time. dn means change in population, time means dt means change in time. What is the change in population with the change in time? It will be calculated by b minus t, number of birth minus number of death. अब हमने इस population का birth rate निकालना है. How it will be calculated? Birth rate हम कैसे निकालते हैं? Number of birth divided by original population. Then b will be small b n. इस equation को मैं 1 लिख देती हूँ. This equation is now 2. हमने birth rate इसका क्या निकाल दिया है? ये बर्थ रेट ऐसे निकलते हैं, ये नंबर ऑफ बर्थ है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट डेथ रेट. डेथ रेट भी कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, देन d इज इक्वल टू स्मॉल d n. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन इज dn by dt is equal to b minus d. अब यहाँ पर हमें इक्वेशन पुट करनी है, तो b की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पर? सी bn माइनस d की वैल्यू स्मॉल d n. तो वी कैन राइट लाइक दिस b माइनस d into n and dn by dt. We can write it like this. Okay. Now b minus d is equal to r. Now what is r? b minus d is equal to r. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? dn by dt is equal to rn. dn by dt is equal to
Now what do you mean by R? R is the intrinsic rate of natural increase. R is intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase. Also you can say it reproductive fitness. Reproductive fitness. Got it? Every species want to increase its reproductive fitness. And do you know R is a very important factor. It is very important factor for ecologists to determine the effect of biotic factors and abiotic factors on a population. Got it? You can take screenshot, then we'll do next thing. Okay. Now अब हमें क्या देखना है? एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है इसका कर्व कैसे आएगा? What will be the graph for exponential growth or geometric growth? This is the population density or population size. This is time, and the curve will be like this. It is known as J-shaped curve. It is known as J-shaped curve, and it is exponential growth of a population. dn by dt is equal to rn. अब एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन क्या हुआ इक्वेशन, हमें ये नहीं सीखना कि इंटीग्रेशन कैसे किया, हमें बस इसको डिराइव करना सीखना था। इंटीग्रेशन करके इसको निकाला है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। इक्वेशन ये लिखी है। नाउ व्हाट इज ई? इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। गॉट इट? आई होप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्लियर है। नाउ अब क्या होता है नेचर में कभी भी लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। देयर इज नो सिचुएशन व्हेन अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन, नो प्रोडक्शन, ऑलवेज इट इज देयर, हमेशा होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएगा इन सब सिचुएशन की वजह से। ठीक है, नेचर ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इट कैन होल्ड। सो एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है विच इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। इट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी represented by capital K. Now what is carrying capacity? Maximum number of individual of a species which a habitat can afford, which a habitat can handle. ठीक है, समझ आ गया? तो इनकी जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को हैंडल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को होल्ड कर सकता है, स्पॉट कर सकता है हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। गॉट इट? ऑर्गेनिज्म की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। सो लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है वो किस तरह से आएगी? दिस इज पॉपुलेशन साइज, दिस इज टाइम, और ये आएगी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और यहाँ पर है कैरिंग कैपेसिटी, इट इज के। नाउ दिस इज द कर्व फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहाँ पर एक फेज आता है इसका लैग फेज, एक फेज है एक्सेलरेशन फेज, नेक्स्ट फेज इज डिसेलरेशन फेज, and last phase is asymptote flat, means carrying capacity पर पहुंच गई है ये पॉपुलेशन। अब इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस? इट विल बी dn by dt is equal to rn k minus n by k. This is the formula for logistic growth curve. It is the formula for logistic growth curve. So this is the curve which is also known as sigmoid curve. ये S की शेप में है, तो ये अगर इसको हम बोलते हैं sigmoid curve, और it is also known as Verhulst-Curl logistic curve. Verhulst-Curl logistic curve. So in exam इस question is asked what is Verhulst-Curl logistic curve? It means वो logistic curve की बात कर रहे हैं, sigmoid curve की बात कर रहे हैं। Got it? और नेचर में रियलिस्टिक कर्व यही है, ना कि ये। Got it? Now you can take screenshot, then we'll start our next topic. Okay, so now we'll start our next topic, and our next topic is life history variation. The
life history variation. Now what we are to study in this topic? You everybody know that each population, every organism, every species want to increase its reproductive fitness, want to increase its R. अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल्सो हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीशीज ये चाहते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव फिटनेस इंक्रीज हो, हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो, ठीक है। एंड इसके लिए वो कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी उनको यूज करना पड़ता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड ओनली फिटेस्ट विल बी सर्वाइव अकॉर्डिंग टू डार्विन। सो टू स्ट्रेटजीज आर देयर which are used by organism to increase their reproductive fitness. First strategy, on the basis of number of times they produce offspring, number of times they produce offspring. कोई species कितने टाइम रिप्रोडक्शन करेगी, कितने टाइम ऑफस्प्रिंग अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करेगी, नंबर ऑफ टाइम दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन देयर लाइफ, दिस इज अ स्ट्रेटजी। अब इनमें ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस वंस देयर इन द लाइफ, एक ही बार अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल बैम्बू, सामन फिश, सम ऑर्गेनिज्म आर देयर विच रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन mammals are there, birds are there. So we can write like this, number of time they produce organism offspring in their life. So some reproduce once in a life, once in their lifetime, once in their lifetime. Who will be the example? Examples are bamboo and salmon fish. Got it? Second way is some organism reproduce many times in their life. And who are the example are birds and mammals, जिनमें कौन का एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं, ह्यूमन। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय एनिमल्स टू इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नाउ सेकंड स्ट्रेटजी वी विल डू। कि सेकंड स्ट्रेटजी क्या है? सेकंड स्ट्रेटजी इज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दे प्रोड्यूस। कि ये चलो ये देख लेते हैं, एक बार प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बार प्रोड्यूस कर रहा है, उसको छोड़ो। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस साइज के रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड देयर साइज, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड देयर साइज, ठीक है। इसके बेस पे टू टाइप ऑफ स्पीशीज आर देयर, वन इज आर सिलेक्टेड स्पीशीज and second one is K selected species. Now what do you mean by this? R selected species, those organisms which produce small sized large number of offspring, कि छोटे बहुत सारे offspring प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट कर पाते हैं उनमें, थोड़ा केयर कर पाते हैं उनका, ठीक है। K selected species में क्या होगा? दे प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ offspring and small sized offspring, लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी कर पाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनके, ज़्यादा केयर कर पाएंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आर सिलेक्टेड स्पीशीज हियर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एग्जाम्पल कौन आएगा इसमें? ओयस्टर्स, pelagic fish is also there, and A selected species में here और offsprings क्या होंगे? Small in number, large in size. एग्जाम्पल कौन आएगा इसके अंदर? ह्यूमन है, बर्ड है। अब ह्यूमन में क्या है, तुमने देखा होगा सबके एक दो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हीं पे एक्सट्रीम केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी इन ईच ऑफस्प्रिंग एंड एक्सट्रीम केयर, और बहुत ज़्यादा केयर भी होती है ऑफस्प्रिंग की, एक्सट्रीम केयर। एंड हियर अपोजिट इज देयर लो केयर,
less energy invested. Got it? So this was all about life history variation. I hope the topic is very clear. You can take screenshot. Then we'll start our next topic. Okay. So life history variation में इतना ही करना है. Generally question is asked in the exam on this topic. Life history variation पे पूछा जाता है. You should know all things about it. Now our next topic is population interactions. Population interaction. Now what do you mean by population interaction? There is no habitat where a single species live. It is not possible to live in isolation. कोई भी organism, rarely it happens कि कोई organism isolation में रह रहा है, अकेला रह रहा है. Otherwise they live in groups. ऐसे ही species भी अकेले नहीं रह रहे. At least one species need one other species on which it can feed. Even plants who produce food for us, पूरी अर्थ के लिए जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, even plant also need some other species, like they need soil microbes for nutrient cycling, for acquisition of minerals. ठीक है, तो कोई भी species अकेली नहीं रहती है, वो दूसरे के साथ interact जरूर करती है. And these are known as population interaction. How a species interact with other species. ठीक है, तो we can write these things. Population interaction क्या होता है? No species lives alone. At least one species is needed on which it can feed. On which it can feed. Even plants need soil microbes. अब ये इंटरेक्शन जो होती है ना पॉपुलेशन के आपस में, स्पीशीज के आपस में, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ स्पीशीज. फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को नेक्टर मिल जाता है और प्लांट्स को फ्लावर की पॉलिनेशन हो जाती है. दोनों के लिए बेनिफिशियल है. पॉपुलेशन में जो इंटरेक्शन होती है कैन बी बेनिफिशियल, इट कैन बी डेट्रीमेंटल, मीन्स हार्म हो सकता है. जैसे पैरासिटिज्म होता है, पैरासाइट क्या करता है, होस्ट को हार्म पहुंचाता है, उससे फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है और हार्म भी कर रहा है. ठीक है. एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी न्यूट्रल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल कैटल एंड इग्रेट. इग्रेट एक बर्ड होता है जो कैटल के साथ साथ उड़ रहा होता है. जहाँ पर कैटल ने फीड करना है, खाना खाना है, ग्रास ग्रेजिंग करनी है, वहाँ पर वो ग्रेजिंग करती रहती है. साइड में छुटमुट इंसेक्ट कीड़े मकोड़े भागते रहते हैं. इग्रेट उसको खाता रहता है. इग्रेट को फूड मिल गया, उसको तो फायदा हो गया, बट कैटल को नो हार्म नो बेनिफिट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ऐसे भी न्यूट्रल भी इंटरेक्शन हो सकती है. सो वी कैन राइट पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल. वी कैन यूज प्लस है. पॉपुलेशन कैन बी इंटरेक्शन कैन बी डेट्रीमेंटल. पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी डेट्रीमेंटल, नेगेटिव साइन. पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी न्यूट्रल, नो इफेक्ट, zero. So population interaction can be of 3 types. You can take screenshot. Okay, so in this chapter we are to study total 6 types of population interactions. 6 types of population interactions. First is predation, we will study. Second, parasitism. Third, competition. Fourth, commensalism. Fifth, mutualism. And sixth and last is amensalism. So total 6 population interaction will study in this chapter one by one. So आज हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी. This was all about today's topic. If you have any doubt, then you can leave it in comment section, and if you really like my content, then please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.